Jeevan Jyoti Agarwal sir, whose ability to simplify complex concepts, instill logical thinking, and build a strong foundation makes him a cornerstone of the academic as well as the management team of Allen Career Institute. Sir is known for his personable skills and interactions with students, and also for his singing talent. Students recall him singing Kishore Kumar songs. Moreover, Sir has played an instrumental role in the establishment of Allen in the Eastern Zone. And since Sir has been guiding IIT JEE aspirants for past 25 years, there is hardly any IIT where Sir's mentees are not present. So being a mathematics faculty, I would like to hold my excitement of sharing the stage with the legend himself, and would like to request Jeevan Jyoti sir to please enlighten all of us through your phenomenal words. Let's please welcome sir on stage. Also, I would request Debashish Sanyal sir to please come on stage to honor sir. तालियां बजती रहनी चाहिए, please. As a token of love and regards, I request Debashish sir to honor sir with Uttoryo, the traditional garment, and a small token from the entire family of Allen Kolkata. Give a huge round of applause, please. एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सर का। Okay, sir, the stage is all yours. Thank you. Kolkata is always blessed by Dev. That's why Debashish sir is taking the command of the entire Allen Kolkata. It's a matter of joy for me to be here with all of you in the city of joy. इतने बेहतरीन बच्चे, ये वो भूमि है जहां स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियों ने जन्म लिया और पूरी दुनिया को राह दिखाई। आज ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का मौका है, इतने अच्छे बच्चे जो कोटा में हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट से, बंगाल से, उड़ीसा से सैकड़ों हजारों बच्चे पिछले 30-35 सालों में लगातार आते रहे हैं। उन बच्चे और उन बच्चों के पेरेंट्स हमसे अक्सर कहा करते थे कि सर हम तो यहाँ कोटा आ गए, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एवरी स्टूडेंट एंड फैमिली to come here. Why don't you come there and give us an opportunity to avail the facility and expertise of your training? तो ये बातें सुनने के बाद में हमारे मन में लगातार ये विचार रहता था कि कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हम शायद जाएंगे, और उसी सिलसिले में 2021 में हम लोगों को मौका मिला बंगाल में आने का। दुर्गापुर से ये शुरू हुआ और माँ दुर्गा की कृपा से आज रामनवमी के दिन आप सबके सामने मुखातिब होने का मुझे मौका मिला है। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। सर ने जैसा कहा कि कोटा की जर्नी के बारे में I will enlighten something, how it all started. It's really a very fascinating story, how this happened. कोचिंग से भी और थोड़ा सा हम पहले चले तो ट्रेनिंग, इट्स अ वेरी ब्रॉड वर्ड बेसिकली कोचिंग. You will recall that there is no field in this world which don't require training. Whether it is an instrument, singing, dancing, you want to do anything, you need training.
If you want to excel, you want to take expertise, then you need training. Whether it is cricket, football, table tennis, badminton, आपको ये महसूस होगा कोई तो होना चाहिए जो मुझे बताए। अब जो वो बताता है तो वो जितने बेहतरीन तरीके से सिखाता है, बताता है, उतना बेहतरीन इनकलकेट उस स्टूडेंट के अंदर होता है, उसकी प्रतिभा में उतना निखार आता है। तो जो एजुकेशन 90s और उससे पहले रही है, उसमें स्टूडेंट और टीचर्स की जो सोच, उसकी कम्युनिकेशन में एक बड़ा गैप रहा करता था। एक पुराना जमाना हुआ करता था, तब ओबीडियंस को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी माना जाता था। जो बड़ों ने कह दिया उसे तुरंत बच्चों को मानना। हमें और हमारे से ऊपर की जनरेशन में अक्सर पेरेंट्स टीचर्स के पास जाके कहते थे कि सर ये गुरुजी बच्चा आपके पास सौंप दिया है, आप जो कहेंगे वो ये मानेगा, नहीं माने तो पिटाई लगाइएगा इसकी कस के। हेलो बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, whenever I say hello, can you give me a single clap? No, single clap. Hello. No, we will do 2-3 exercises. Hello. Hello. I need participation of each and everyone. See, your participation gives me motivation. It's not always teachers motivate the students. You need to understand the symmetry between the teachers and student. Student motivate the teachers, then teacher motivate the student. This is a two-way process. There were 105 students in a very old coaching institute. 105 students. And the teacher taught all the 105 students. But there was one student who was extraordinary brilliant. Can you name that student? Just think about 5,200 years ago. Yes, ma'am, please. वहीं से बैठे बैठे बोलिए। अर्जुन। द्रोणाचार्य क्लासेस was the name of coaching institute, और उसमें अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने कहा कि I will make you the world's best archer। क्यों उसको जाके कहा? उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को भी नहीं कहा, और बाकी सबने सेम फीस दी थी। सभी धृतराष्ट्र के या पांडु के पुत्र थे, राजकुमार थे, उसको एक को कहा भैया। हेलो, क्योंकि one day he saw at night everyone was sleeping and there was a boy who was practicing. वो अपने जो हट था उनका, उससे बाहर निकल कर आकर देखते हैं, करीब जाकर देखते हैं, उस समय लाइट्स तो हुआ नहीं करती थी ना, रात यानी रात थी। And he saw Arjun was practicing. उन्होंने पूछा अर्जुन से, बेटा ये क्या कर रहे हो रात को? मतलब गुरुदेव मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्यों? मतलब दिन में कर लेंगे अपन, अभी तो दिखाई नहीं देता है। गुरुदेव मैंने देखा कि बड़े भैया भीम अंधेरे में खीर खा रहे थे। Then he said, so what? वो अंधेरे में खीर मेरे को समझ में नहीं आया कैसे खा पा रहे थे। मैंने उनसे पूछा आपको दिखाई कैसे दिया, कहां रखी है, कैसे खाना है? Then भीम भैया says, practice makes a man perfect. And I took those words. जब वो अंधेरे में खीर खा सकते तो मैं अंधेरे में निशाना क्यों नहीं लगा सकता? And Gurudev was impressed and he blessed him. I will make you the best. So this way students motivate the teacher कि ये ऐसा नायाब हीरा है कि इसको मैं तराश करके पूरी दुनिया का बेहतरीन हीरा बना के दिखा सकता हूं। तो आई नीड योर मोटिवेशन। हेलो, विल आई गेट इट? तो आज से लगभग 35 साल पहले ये कहानी शुरू हुई। राजेश महेश्वरी सर जो एलन के फाउंडर डायरेक्टर हैं, he decided to teach the students. As I told you, there was a gap between teachers and students in previous before 90s. गैप ऐसा रहता था कि स्टूडेंट्स बहुत ओबीडियंट होते थे, बहुत रेस्पेक्ट करते थे, पर स्टूडेंट और टीचर के बीच में उतना कम्युनिकेशन नहीं होता था। स्टूडेंट्स बहुत फ्रैंकली टीचर से नहीं पूछते थे, उनको लिहाज रहता था, इज्जत करते थे, तो थोड़ा सा डर रहता था उनके मन में, तो कम पूछते थे। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट वाज हैपनिंग दैट टाइम। But gradually, when Rajesh Maheshwari sir started teaching,
his age was very early young age. Around he was 27 to 30 year old. Students say 16, 17 year old. So age का gap थोड़ा कम था. He started talking to them frankly. बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. वो अपनी हर बात कहने पूछने लगे. हंसी मजाक होने लगा क्लास में. They started feeling comfortable. और उस कंफर्ट लेवल के साथ साथ ही स्टार्टेड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स. और उस मोटिवेशन से बच्चों को एक अलग अलग एहसास होना शुरू हुआ. उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा. सी टीचिंग इज वन थिंग, बट मोटिवेशन along with the teaching makes it a deadly combination. He make them realize yes you can do anything. ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स थे जो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा करते थे. उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी जब पढ़ाना शुरू किया गया एलन के टीचर्स ने, राजेश सर के साथ में विदेश महेश्वरी सर जुड़े और पीवी सक्सेना सर, केजी वैष्णव सर, देयर वर न्यूमरस यंग टीचर्स हु स्टार्टेड जॉइनिंग, मोटिवेटिंग देम. ईयर आफ्टर ईयर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट्स. उस समय कभी भी ये नहीं सोचा जाता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ पढ़ा हो सकता है, कि ट्यूशन माना जाता था. बट जब 5000 बच्चे एलन के ऊपर, 1000 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन जब मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ, लोगों को देखकर सरप्राइज हो गया. ये क्या चीज है? एक ही जगह से, एक इंस्टीट्यूट से 1000 बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाना, डॉक्टर बन जाएंगे. डॉक्टर बनना बहुत बड़ा सपना होता था, इंजीनियर बनना बहुत बड़ा सपना होता था उस जमाने में. जब हजारों की तादाद में होना शुरू हुआ तो इट वॉज नॉट लेस देन ए रेवोल्यूशन. और ये रेवोल्यूशन थमा नहीं. 2008 में आईटी के ट्रेनिंग देने का डिसीजन हुआ और फुल फ्लेजेड जेई प्रिपरेशन को भी एलन ने शुरू किया. दिस वॉज ऑल हैपनिंग रेगुलरली. ऐसा नहीं कि मतलब एक बार शुरू हुआ और हम थम गए, नहीं. बेहतरीन लोग जुड़ते चले गए और ये आगे से आगे हम बढ़ते चले गए. अब इस ग्रोथ स्टोरी के अंदर आईआईटी ने जैसे ही शुरुआत की तो हमारे कई बेहतरीन रिजल्ट आना, एक ऐसे पल जो बहुत रेयर होते हैं, वो होते हैं ऑल इंडिया रैंक 1. आईआईटी दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस में से है. उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दुनिया के सबसे टफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में से माना जाता है. ऐसे एग्जाम में क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है. ऐसे एग्जाम के अंदर फर्स्ट रैंक लेकर आना इज बियॉन्ड नॉर्मल एक्टिविटी. जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण होता है, टॉप 100 में आना, टॉप 10 में आना उस सम्मान से कम नहीं होता है. और मेडिकल, आईआईटी दोनों के अंदर फर्स्ट रैंक एलन से आई 2014 में. एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी घटना. ऐसा पॉसिबल नहीं. एक में आना बड़ी बात होती, टॉप 100 में आना बड़ी बात होती, टॉपर और दोनों में. लेकिन शायद उस ऊपर वाले ने, जैसे देवाशीष सर है ना हमारे पास में, देवों का आशीष है हमारे पास में, कुछ वैसा ही देवाशीष एलन के ऊपर था. इससे भी बड़ा रिजल्ट एलन का इंतजार कर रहा था 2016. 2016 के अंदर सिर्फ फर्स्ट रैंक नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन मेडिकल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन आईआईटी. हेलो, आप सोचते रह जाएंगे. ऐसा रिजल्ट जब आया था तो डायरेक्टर्स ने भी कहा कि भाइयों, इससे बड़ा रिजल्ट मुझे नहीं लगता ये रिजल्ट हम रिपीट भी कर पाएंगे. ये तो मतलब विशेष ही कृपा है भगवान की हमारे ऊपर, वरना ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन ईयर आफ्टर ईयर वी वर वेरी फॉर्चुनेट. हमें इतने बेहतरीन बच्चों का, पेरेंट्स का प्यार मिला. यकीन मानिए ये सिर्फ टीचर्स की दम पर नहीं होता है. जैसा आई टोल्ड यू, इट वाज नॉट ओनली द द्रोणाचार्य, अर्जुन भी उन्हें मिला था, वरना वो 105 को सबको अर्जुन नहीं बना सके. अर्जुन यानी स्टूडेंट में भी कुछ होना चाहिए, उसमें भी डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कुछ पैशन चाहिए. उसके बाद along with that talent, the guidance can make it a deadly combination. 2019 again we repeated the history, first rank in both the exam. फिर 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 आईआईटी के अंदर. Then 2024, this is again an extraordinary result. Why it was an extraordinary result? JEE में आज तक, JEE means joint entrance examination for IIT. I'm talking, whenever I say JEE, I mean JEE Advanced for IIT. इसमें पहली बार किसी बच्चे ने
355 आउट ऑफ 360 स्कोर किया। कभी भी आज तक इतना स्कोर किसी भी स्टूडेंट ने जेई एंट्रेंस में कभी भी नहीं लिया। 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले आईआईटीज के अंदर जनरली 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होते। बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है एक भी बच्चा नहीं होता। 2024 के अंदर एक भी 2023 के अंदर एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसके 90% से ज्यादा मार्क्स थे। टॉपर के 88.86 मार्क्स थे, लेकिन इस साल he secured 96%, 98.61% मार्क्स। इट वाज ब्रिलियंट। ये मतलब हम खुद भी नहीं सोच सकते थे। और इसी के साथ में नीट के अंदर एक साथ इतने सारे टॉपर्स, यू कैन सी दीज वर 6 ऑल इंडिया रैंक हुआ। आपको ये लग सकता है ऑल इंडिया रैंक 1 6 बच्चों की कैसे आ सकती है? 6 की नहीं, और भी बहुत ज्यादा की आई थी, क्योंकि 720 आउट ऑफ 720 न्यूमरस स्टूडेंट्स स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। दिस इज अबाउट मेडिकल में और जेई के अंदर अपने रिजल्ट से एलन ने बार बार ये प्रूव किया, यस वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल आप देखते हैं, यू कैन हैव अ मोबाइल फोन of 10,000 rupees, also a smartphone, good smartphone of 10,000 rupees. Simultaneously, you can have a mobile phone of 1 lakh or 1.5 lakh rupees also. What is the difference between those two? It is a matter of performance, the efficiency, credibility. I'm not just talking about the money, I'm talking about the value. Both are smartphones. एलन इज ए लीगेसी। 25 बार आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 1, वेदर इन आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डोंट यू थिंक वी मस्ट एटलीस्ट अप्रिशिएट ऑल दीज टॉपर्स बाय क्लैपिंग 25 टाइम्स? 1 2 3 4 5 6 come on, 8 9 10 everyone, 30 14 15 16 17 19 21 23 25। well done। ये बच्चे सिर्फ एलन के बच्चे नहीं हैं, ये देश के बच्चे हैं। इनके फैमिली का नाम रोशन किया, इन्होंने अपने शहर का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ हमारी बदौलत आए हैं, ये कहना गलत होगा। लेकिन हमें खुशी है कि पेरेंट्स ने, बच्चों ने एलन पर भरोसा जताया, एलन के सिस्टम पर भरोसा जताया, एलन के साथ एसोसिएट हुए और उस गाइडेंस को उन्होंने फॉलो किया और कामयाबी की बुलंदियों पर वो पहुंचे। बच्चों, आप सबने अपनी जर्नी शुरू की है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन 6th क्लास? प्लीज रेज योर हैंड। मेरी रिक्वेस्ट है, क्या ये लाइट्स थोड़ी सी कम हो सकती हैं क्या? मैं देख नहीं पा रहा हूं बहुत अच्छे से। आप सब तो मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं। थोड़ी सी अगर आप डिम कर दें तो मेहरबानी होगी। जितनी भी आप कर सकते हो उतना अच्छा है मेरे लिए। थैंक यू। हाउ मेनी ऑफ यू आर 6th क्लास स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड। 7th, 8th, 9th, 10th। बच्चों, आप लोगों ने एलन ज्वाइन किया आपके पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके। यू आर हैविंग इमेजिनेशन, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में कई ऐसी चीजें हैं जिसको आप रिवील होता जाएगा आपको। टीचर्स underline those things which are not possible to comprehend just by reading. There are few things which are between the lines, which sometimes we call as purport, भावार्थ जिसे कहते हैं। I will give you an example. अगर एक लाइन हो, I am talking to students, my question will be answered by the students only. I request, this is just a humble request. If there is a line, I want to shorten the line. What should I do? एक लाइन है,
बच्चों में उसे छोटा करना चाहता हूं, मैं क्या करूं बेटा? रेज योर हैंड, वेयर आर यू? यस, बोलो। वेरी गुड, बैठिए। यस बेटा, सेम आंसर। अच्छा, कितने बच्चे ये जवाब देना चाहते हैं? एक लाइन है और उसके पास में मैं एक बड़ी लाइन बना दूं? कितने बच्चे ये आंसर दे रहे हैं? वो हाथ खड़े कीजिए। बोलो। कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं उसे मिटा दीजिए, छोटा कर दीजिए? वो हाथ खड़े कीजिए। बड़ो कर हाथ तोलो। अच्छा, बाकी आप कुछ भी आंसर नहीं दे रहे, क्या आप लाइन छोटी नहीं कर सकते? सर इट्स योर जॉब, आपको छुट्टी करनी है, आप सोचिए ना, डू योरसेल्फ। आपसे पूछ रहा हूं, एक लाइन में आपको कहूंगा छोटा करने के लिए, नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप? इरेज कर देंगे। तो आप हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? You are supposed to participate. You are in a class. In the class, you are supposed to interact. Being a passive learner is one thing and active learner is another thing. आप यहाँ प्रवचन सुनने के लिए थोड़ी ना है। जे महाराज का प्रवचन होगा, खूब ज्ञान और गंगा बहेगी और फिर हम बोलेंगे बोल गोवर्धन गिरधारी लाल की। देखिए, भजन कीर्तन अच्छी बात है, मैं इसमें कोई मेरी शिकायत नहीं है उससे कि भाई मैं आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, बट इवन इन दैट, इन माय ओपिनियन, वी नीड टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट. We need to learn. We are going to follow a good career. We are looking for a good career. Then we need to be active participant. हमने सुना और हमने कुछ भी उसका अर्थ निकाले, ऐसा नहीं है. आपको सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, सोचना चाहिए. एटलीस्ट यू मस्ट मेक एन ओपिनियन. अब ये दो तरीके इन जनरल होते हैं. इन दो तरीकों में जमीन और आसमान का फर्क है. ये महज इस चीज के लिए नहीं पूछा जाता है कि लाइन को छोटा करना है. इसमें एक फिलॉसफी है. एक फिलॉसफी कहती है कि अगर आपको किसी को छोटा करना है तो उसे मिटा दो. दूसरी फिलॉसफी कहती है कि अगर किसी को छोटा करना है तो अपने आप को इतना बेहतरीन बनाओ, इतना बड़ा बनाओ कि वो खुद ब खुद छोटा दिखाई देने लग जाए. खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या. खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप को इतना बेहतरीन बनाओ कि जब भी तकदीर लिखने का, अपनी किस्मत लिखने का वक्त आए तो भगवान हमसे खुद पूछे कि बताओ आप क्या लिखवाना चाहते हो. जो आपको पसंद है वो हम लिख देंगे आपकी तकदीर में. आपने इतनी मेहनत की है, यू इम्प्रेस मी सो मच कि आपको जो पसंद, जो रजा है आपकी, वही हम इसमें लिख देंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिलॉसफीज. लाइन को छोटा करने का ये जो एग्जाम्पल है इस चीज के लिए दिया जाता है. ये महज इस चीज के लिए नहीं दिया जाता है कि छोटा कैसे करना है. छोटा करना है तो कर दो ना भाई, मिटा के कर दो, चाहे वो एक अलग बात. इस बात को बताने के लिए एग्जाम्पल है. ये जो बिटवीन द लाइन्स है, ऐसा ही आपके सब्जेक्ट्स में छुपा हुआ होता है. चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, चाहे वो ये जो हमारे अंदर का टैलेंट बाहर निकल कर आता है जब हम इन प्रॉब्लम्स को करते हैं. टीचर्स हमें ऑब्जर्व करते हैं, दे गाइड अस. व्हेन वी आर इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक बेहतरीन, जैसा देवाशीष सर ने बताया, होमोजेनियस सिस्टम, ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं. जब आप ऐसे लाइक माइंडेड बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ते हैं तो आप अपने आप को इन्वेंट करते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं. अमिताभ बच्चन सिंगर बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे. वो फिल्म स्टार या एक्टर बनने के लिए नहीं आए थे. जब वो सिंगिंग का ऑडिशन देने के लिए गए थे, हेलो, तो उनकी आवाज सुनने के बाद में उनको मना कर दिया, नहीं आप सिंगिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे. Then somehow उन्हें एक ब्रेक मिला, एक्टिंग के अंदर ब्रेक मिला और एक्टिंग करना उन्होंने शुरू किया. और एक्टिंग जब करना शुरू किया तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा. आज वो 75 साल के हैं. इस उम्र के इस दौर में अक्सर सारे सितारे धूमिल हो जाते हैं, नजर नहीं आ जाते हैं. लेकिन वो इस उम्र में भी उन्होंने
केबीसी जैसे सीरियल के अंदर, केबीसी जैसे प्रोग्राम के अंदर, एक जनरल नॉलेज के प्रोग्राम को इतना खूबसूरत तरीके से होस्ट किया है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का बुजुर्ग एक साथ बैठकर उस प्रोग्राम को देख सकता है, एंजॉय कर सकता है, सीख सकता है। ये काबिलियत उन्होंने इन्वेंट की, वो पैदाइशी नहीं थे ऐसे। पैदाइशी या 10 साल के जब वो आपकी उम्र में थे, उन्हें नहीं पता था कि वो इतने बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे, इतने बेहतरीन फिल्म स्टार बन जाएंगे कि दुनिया में उनके चर्चे हुआ करेंगे। इस उम्र में आने के बावजूद भी आज भी वो सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म एक्टर्स में से हैं, सबसे ज्यादा उनकी अर्निंग है, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनसे ज्यादा अर्निंग उनकी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अभी अपने आप को बहुत कुछ इन्वेंट करेंगे। जब आप इस समंदर में आए हैं, जैसा कि सर बता रहे थे, आप टॉपर हुआ करते थे अपने स्कूल के अंदर, यू वर अमंग 40 स्टूडेंट्स। जब आप यहाँ आए, आपका टेस्ट होता है या होगा अब आगे, तो 200 बच्चों में, 500 बच्चों में आपका टेस्ट होगा, आपकी रैंक आएगी। यू विल कम टू नो अबाउट योर पोजीशन। यू विल रियलाइज कि मैं जिस ग्रुप में था उससे ज्यादा बेहतरीन बच्चे इस ग्रुप के अंदर हैं। उनके सोचने समझने का तरीका कितना बेहतरीन है। वो जो नए नए सवाल रोज आप सुनेंगे, देखेंगे, वो आपको और बेहतरीन बनाएंगे। वो आपको एक वजह देंगे कि क्यों आप वर्क करें। मैं एक छोटा सा टेस्ट आपका लेना चाहता हूं, एक अवेयरनेस टेस्ट। मैं सुमित सर से उस अवेयरनेस टेस्ट के लिए बोलता हूं, लेकिन पहले आपसे जानना चाहूंगा, आर यू रेडी फॉर ए टेस्ट? हेलो, पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार नहीं है, सर संडे का दिन है, हम तो आए थे आराम से बैठेंगे, आपकी कहानी में सुनेंगे। टेस्ट वेस्ट की बात कहां से? आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? ओके, आई रिक्वेस्ट सुमित सर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो वो अवेयरनेस टेस्ट को प्ले करेंगे। ये टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर 2 टीम्स हैं, ब्लैक कलर में और व्हाइट कलर में। सुमित सर आपको पॉज भी करना पड़ेगा, जब मैं आपसे कहूंगा उस समय पॉज भी कीजिएगा इसे। तो इसमें 8 प्लेयर्स हैं, 4 आर इन व्हाइट यूनिफॉर्म, 4 आर इन ब्लैक यूनिफॉर्म। दे विल पास बॉल्स टू ईच अदर। You have to count how many passes they makes. A particular team that will be displayed in the video itself. Sumit sir, are you ready? Can you play? जब मैं कहूं तो पॉज कीजिएगा सर। व्हाइट कितने पास करते हैं व्हाइट प्लेयर्स? स्टॉप सर, आपने ऑडियो नहीं चलाया है इसका, सिर्फ इसमें पिक्चर्स आ रही हैं। आप अगर ऑडियो चलाते तो अच्छा रहता है, लेकिन आपको समझ में आया है? और इसको कंटिन्यू रखिए, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। सुमित सर प्ले। बस स्टॉप। How many of you answered correctly? Raise your hand. बहुत बढ़िया. Now this is not my question. My question is, how many people were there in this video? Raise your hand now. Raise your hand. आपको बच्चों, आप जो बैठे हुए हैं, आप first boy, second boy, yes. You don't know how many people were there in it? बैठे बैठे बताओ, आप आराम से एकदम कंफर्टेबल, जैसे घर में बैठे रहते ना सोफे पर, वैसे बात कर रहे हैं। बताओ, आपको नहीं पता कितने लोग हैं? मे बी यस, आप बता सकते, लेकिन मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं क्यों बता रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ द गेम। ओनली दोज विल आंसर हु आर आस्क्ड। पेशेंस इज अनदर टेस्ट। आपको पता है फिर भी आप चुप रह सको, ये भी बहुत जरूरी होता है। डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीवन। Who am I? A teacher. Teachers expect that students must be very attentive. They must be ready for the questions.
They must watch everything very carefully. There were eight players, 4 in white and 4 in black. But there was one more person. There was one more person. मैं सुमित सर से कहूँगा please play again. Continue करिए, I mean, don't rewind it. इसका वॉल्यूम भी ऑन कीजिए. Now just watch. Stop. Pause कीजिए. Is the moon walking there? ये आते हैं. Yes, continue कीजिए sir please. सुमित सर play. ये आए और आकर चले गए और हमारा ध्यान नहीं गया. जिंदगी में अक्सर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता. एंड हियर कम्स द टीचर, जो आपको ये बताते हैं आपने क्या नजरअंदाज कर दिया. आपका नजरअंदाज करना भी आपकी खूबी थी, आपकी कमजोरी नहीं थी. When we focus on one thing, we sometimes loses the focus on other things. But they may be important also. Like Devashish sir very categorically underlined, don't compromise your health. Physical fitness is also important. Spend 15 minutes to 30 minutes for your physical activity also. He knows very well because he saw numerous students कि वो अपने करियर के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई के लिए इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो पूरी तरह से दिन रात उसी में जुट जाते हैं. पर वो ये भूल जाते हैं कि आपको अपनी बॉडी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए उसे फिट भी तो रखना पड़ेगा. ये कोई एक दिन 2 दिन का फलसफा थोड़ी ना, एक लंबी जर्नी है. और आप 10th का एग्जाम क्वालिफाई करके आप चाहे साइंस चूज करते हैं, वेदर यू चूज लॉ और चार्टर्ड अकाउंटेंसी और any business, whatever you want to do in your life, this is a long journey. 5 साल, 10 साल, nobody knows, maybe 50 years. ये तो जिंदगी भर. इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो लगातार स्ट्रगल नहीं करता, लगातार हार्ड वर्क नहीं कर रहा. Either you choose the hard work or the struggle will choose you. You just look around yourself. इस दुनिया में आपको कोई भी फालतू बैठा हुआ नहीं दिखेगा. कोई चींटी और मच्छर को भी आप देखिए, दे आर ऑल्सो वर्किंग टायरलेसली. 2 दिन की जिंदगी होती है. कितने ही ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी 2 दिन की तो पूरी टोटल जिंदगी होती है. मच्छर जनरली 2-3 दिन की जिंदगी मानी जाती है. पर फिर भी उसमें ऐसा नहीं कि आराम से भाई 2 दिन की तो जिंदगी, क्या करना, बैठे रहो यार. वो भी मच्छर हो, चींटी हो. आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है. किसी भी ब्लॉक में हो, चाहे S, P, D और F. तो हार्ड वर्क और स्ट्रगल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. नाउ इफ यू विल नॉट चूज द अप्रोप्रिएट स्ट्रगल और करियर फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू डू समथिंग, देन यू विल बी फोर्स्ड टू डू समथिंग. क्योंकि आप ग्रेजुएट होंगे, कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा. यू कैन कंसिडर कि आप लिवलीहुड के लिए कर रहे होंगे, फैमिली के लिए कर रहे होंगे, अपने आप के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो कुछ तो करना है, उसमें क्या करना है. And why I'm saying this, because in your teenage it will be very crucial for you to decide what kind of career you want. At this stage many students think astronaut बनना है. कितनों को astronaut बनना है आप में से रेजर हैंड. बहुत कम सुनीता विलियम्स और नील आर्मस्ट्रांग मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं. कितने लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कितने डॉक्टर बनना चाहते हैं. अरे भैया डॉक्टर तो बहुत है, हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी भी है. कितने लोग आईटी से ग्रेजुएशन चाहते हैं, भाई आईटी में जाने का है. ओहो, क्या करेंगे आईटी में जाके, क्या करेंगे वहां जाके. आईटी में क्या होता है, आईटी में जाकर क्या होता है, क्या करते हैं आईटी में जाके. खेलने को मिलता है वहां पर.
वेरी गुड, वेरी गुड, बैठिए बैठिए। सो ही मेट एन अंकल, और वो इंजीनियर थे। उनकी बातों से, उनके इनोवेटिव आइडियाज से ही गॉट इंस्पायर्ड, और उनको लगा मुझे भी कुछ करना है, और IITs आर द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द कंट्री। तो मेरे को आइडिया, आप देखिए वो छोटी सी मुलाकात कैसे हमारी दिशा बदल देती है। ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। जनाब यकीन कीजिए मेरी बात पे, कैसे छोटे छोटे मौके हमारी जिंदगी बदल देते हैं। किसी की भी जिंदगी किसी भी समय बदल देते हैं। एक इंसान था, वो फर्स्ट क्लास ट्रेन में बहुत आराम से सफर कर रहा था, बहुत बढ़िया लॉयर था, अच्छा लॉयर था, फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक से किसी ने उसको बेइज्जत करके ट्रेन से धक्के मार के निकाल दिया। You don't deserve to sit with me. उसने कहा यार मेरे पास रिजर्व टिकट, आप मुझे कैसे, बाहर निकल जाओ, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मेरे साथ में बैठ सको। फिर ट्रेन से धक्के मार के नीचे गिरा दिया। क्या ये कोई अच्छा इवेंट था? क्या किसी को भी अच्छा लगेगा ऐसा हुआ? पर इस बुरे इवेंट से जन्म हुआ एक महान शख्स का। बता सकते हैं वो इवेंट में कौन महान शख्स था? महात्मा गांधी। अगर वो इवेंट उनकी लाइफ में नहीं हुआ होता तो उन्होंने ये सोचना शुरू नहीं किया होता कि ये हो क्यों रहा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनके अंदर उन्होंने वो पूरी रात रेलवे स्टेशन पर बिताई, जलील होकर, इंसल्टेड फील होकर, और वो सब कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे थे। दिमाग लगाते गए, वो जर्नी शुरू हो गई। उन्होंने उस दिन थोड़ा तय किया था कि मुझे बड़ा होकर महात्मा गांधी बनना है। इसकी कोई तैयारी, कोई एजुकेशन, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा होता है हाउ टू बिकम महात्मा गांधी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना भाई। ये हालात हमें बनाते हैं। आप बच्चों अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। जब आप पेरेंट्स से बात करेंगे, जानेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखे और किस तरह से उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होकर वो आज जहां है उस मुकाम पर वो पहुंचे। एवरीवन इज अ लॉन्ग स्टोरी, एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल इतने ढेर सारे एक्सपीरियंसेस लेकर बैठा हुआ। सर हाउ मच टाइम आई कैन टेक? तो बच्चों, ये आपका जो जुड़ना है, ये बहुत आपके लिए, आपकी जिंदगी के अंदर एक मील का पत्थर है, ये मंजिल नहीं। माइलस्टोन। What is milestone? Whenever we want to reach some destination, during the journey, there are stones on roadside. लिखा रहता है उसके अंदर, जहां आप दुर्गापुर जाना चाहते हैं, यहां से जब आप कार से जाएंगे तो दुर्गापुर 140 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर बाद 130 किलोमीटर, those are known as milestone. This is just a milestone. You keep taking the right step in the right direction. Doesn't matter whether slow or fast, but if you are in the right direction, you will reach at the destination at one day. एक महीने में नहीं पहुंचोगे, एक साल में पहुंचोगे, एक साल में नहीं तो 2 साल में पहुंचोगे. And Allen system is a very good companion. I assure you, over the period of time, in last 38 years, Allen ने अपने आप को भी इन्वेंट किया. अपने आप को कैसे इन्वेंट किया? आप देखिए, इतनी बड़ी टीम है. जिस राजेश महेश्वरी ने अपने 4 भाइयों के साथ में मिलकर इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम बनाया, he is not here, but that excellence is here with more energy and with a very strong team under the command of Devashish sir. Please give a very big round of applause for a teacher. ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं, अब सोचिए कोटा के अंदर लगभग 1,35,000 बच्चे एक समय, 1 साल पहले तक 1,35,000 बच्चे वहां पर आकर क्लासेस अटेंड करते थे पूरे देश भर में। कोटा कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, वहां पर एयरपोर्ट तक नहीं है, इतनी फैसिलिटी नहीं है, और वो फैसिलिटी नहीं होना ये इसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। बच्चे आते और फोकस करके पढ़ते चले गए, साल दर साल बेहतर रिजल्ट देते चले गए, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं देश भर के, जितना कहीं देखने के लिए, सुनने के लिए, सोचने के लिए नहीं मिलता है लोगों को।
और वही एक्सीलेंस लेकर आज एलन का सिस्टम पूरे देश भर में 65 से ज्यादा सेंटर्स हैं और 3 लाख से ज्यादा बच्चे एलन के क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हम ऐड कर चुके हैं आज। इसका चाहे टेस्टिंग सिस्टम हो, अगर ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं। सर ने जिस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया, उस डिजिटल के अंदर जो एक्सीलेंस लेवल, जो एक्सपर्टीज एलन की है वो किसी की भी नहीं है, अनपैरेलल है। एलन की एक डेडिकेटेड more than 100 software professionals are working to make your online journey a wonderful journey। आप ऑफलाइन के स्टूडेंट्स कैसे उस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं, उसकी व्यवस्था दिन रात अलग चल रही है। If anyone wants to join online courses, it's not practically possible for him to join offline classes. There are online classes. There are distance learning program. There are programs for every kind of students, whether he is in 6th class, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, repeater. And gradually we are expanding in all other directions. Gradually we will keep on increasing because we have a very strong and dedicated team of IT graduates are there. There are doctors. There are different experts of different field. More than 10,000 people are there. More than 4,000 faculty members, strong faculty team is there. There's literature. We are sharing the same asset. जो चीजें कोटा के पास में हैं, वो चीजें कोलकाता के पास में, जो कोलकाता सेंटर के फैकल्टीज काम करते हैं, वो दूसरे सेंटर्स भी उसका फायदा लेते हैं। यानी वो हम कॉमन एसेट हमारे पास में है, लिटरेचर हो, एक्सपीरियंस हो, एंड दैट एक्सपीरियंस will be transferred to you. Everyone will be benefited by that. तो आप सब लोगों को इस पूरी जर्नी के अंदर आनंद आए, मजा आए, ये मेरी और एलन की टीम मेंबर्स की सबकी तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे चारों डायरेक्टर, we have now 5 directors. Our 5th डायरेक्टर उदय सर, उदय शंकर सर का नाम आप लोगों को शायद जानकारी में आया हो। अभी जियो और हॉटस्टार का मर्जर हुआ, जियो हॉटस्टार बन गया है। जिस हॉटस्टार को आप देखा करते थे उसमें अब जियो हॉटस्टार लिखा आता है। उस हॉटस्टार के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले उदय शंकर सर और जियो अंबानी का, इन दोनों ने मिलकर जियो हॉटस्टार बनाया है। उनकी चेयरमैन है नीता अंबानी जी एंड द वाइस चेयरमैन उदय शंकर सर। ही इज द 5th डायरेक्टर। We are having such a wonderful leadership, and their next generation, their sons are also being associated. We have no other job. Our directors are not doing any other job. There is only one job, education. We want to reach to everyone. We want to share this experience with everyone in the country so that we can contribute in our own way in the national progress. I wish all of you once again very good luck. मुझे उम्मीद है आप कामयाबी के रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। चैलेंजेस आएंगे, बट चैलेंजेस में एलन है। You just recall the spelling of challenge. हेलो, स्पेलिंग सोचिए क्या है चैलेंज की। You found Alan in it? Alan will be there in every challenge. Okay, thank you to all of you for hearing me so patiently. Thank you so much, sir, for your motivation.